तो कल जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो आप सभी को याद है ना, तो आज याद रखना, ठीक है। तो कितने पर्सन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पर्सन है। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी गिविंग यू अ वन जीडी टॉपिक, and then I will be giving you the 5 minutes for write down your points. And after 5 minutes, when I will say start, then each one of you will introduce the topic. Okay, and it should be not more than 2 minutes of introduction. And after that, when all will be finished, then you will be discussing among yourselves within the 10 minutes. And after 10 minutes, when I will be asking the conclude the topic, whatever you have discussed during the discussion, then you will be concluding the topics. And conclusion should be included each one of points. Whatever Jayesh had said, Aditya said, Anupam said, Toran said, and like that. Okay? After that, I will be rating you based on your performance and whatever the improvements that you need to be done in the upcoming GDs. ठीक है? क्लियर? ओके, मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। लिसन, लिसन एवरीवन। तो ग्रुप डिस्कशन का इंट्रोडक्शन जो होगा वो एक ही व्यक्ति देगा, ठीक है। नहीं, सबके सब इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। और नहीं, दूसरी चीज, हाँ, जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन भी एक ही व्यक्ति करेगा, ठीक है। कंक्लूजन भी एक ही व्यक्ति करेगा। एंड कंक्लूजन में जो ग्रुप में जो डिस्कस हुआ है ना, जो आपने पॉइंट्स डिस्कस करे, वो चीज वो चीज आप लोग को बतानी है कंक्लूजन वाले पार्ट में, ठीक है। आर अभी यू क्लियर अभी एवरीवन? जस्ट प्रैक्टिसिंग के लिए मैं इनसे बोल रहा हूँ, लेकिन अभी 3 to 4 जीडीज हो जाएंगे, उसके बाद सिंगल पर्सन दिया करेगा इंट्रोडक्शन। ठीक है? अच्छा। तो अभी आप अच्छा। सब लोग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन हम्म। जब 3 to 4 जीडी हो जाएंगे, फ्रॉम फिफ्थ जीडी आप में से कोई एक ही इंट्रोड्यूस करेगा और कोई एक ही कंक्लूड करेगा। ठीक है? सो दिस इज योर सेकंड जीडी। नाउ कम। मैं रिलेटेड भी एज रियल, ओके। रियल ही रहने दो, ठीक है। चलो तो चलेंगे। रियल 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 टाइम ही रहने दो, है ना। चलो ठीक। डोंट कंफ्यूज देम, राइट, फिर वो वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं वो। ओके। चलो तो फिर चीजें रियल रहने क्लियर है देते हैं। सभी को? तो कोई भी एक इंट्रोड्यूस करेगा हम्म। और कोई भी एक कंक्लूड करेगा। ठीक है? और ये याद रखिएगा कि डिस्कशन में प्लीज डू नॉट फाइट। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज द जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। द टॉपिक इज क्लियर, द जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैंने चैट बॉक्स में भी लिख दिया है, द जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो यू हैव 5 minutes to think. From 5:20 we will be starting the GD. Okay?
पॉइंट्स रेडी है सभी के? Yes, sir. Yes. रेडी, सो स्टार्ट। Good evening, everyone. Am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल। Yes. Good evening, everyone. I am Anupam Ghosh. Today, we are being provided with a group discussion. On behalf of the entire group, I am very glad to take the opportunity to introduce our today's group discussion topic, which is geopolitical impact of climate change. Climate change is a serious concern for the entire world. We all are very much aware that the effect of climate change. Now, I would like to suggest to focus on some key areas, like what is climate change, the reason behind climate change, and the impact of climate change in geopolitical, as well as how can we prevent climate change and what are the government policies to prevent such kind of serious concern. Now, I would like to open the discussion for everyone. नाउ I completely agree with your point. आप लोगों में डिस्कशन कर लीजिए, ठीक है? I completely agree with one of my fellow participants, as he said that there are various consequences of the climate change in today's world. First of all, we have to focus on this on a geopolitical level. Nowadays, the sea routes has been changing because of the rising global warming. This is because some of the trade routes which have been there on the countries, they are getting submerged. So we have to change these trading routes as well. क्लाइमेट चेंज Okay, you start. क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे किसान लोग समय पे फसल नहीं उगा पाते, उनकी लॉस हो जाती है। तो इसमें भी पॉलिटिकल इशू होती है। I agree to what. Okay, sorry. आई एम टोटली एग्री विद आदित्य कि जो क्लाइमेट चेंज के वजह से सबसे जो मुसीबत में है अभी वो एग्रीकल्चर पे, और स्पेशली हमारे देश में 140 करोड़ आबादी में 60% लोग एग्रीकल्चर फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, एक तो हेवियर थंडरस्टॉर्म हो रहा है, कहीं कहीं मानसून डिले हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर जो क्रॉप का प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो गया। और जहां हमारे जैसे देश में 15% जीडीपी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, तो ऐसा देश में क्लाइमेट चेंज बहुत खतरनाक चीज बन के आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए। I Okay, agree to I what completely Anupam agree with your said. point. I would like to take this GT ahead. I would like agree with what Anupam just said about the crop productivity and the produce. So basically, due to this shortage of production, we get to see adulteration in the food items that we consume. So that has an indirect impact on our health. And secondly, due to this crop uh, impact on crop productivity, uh, there is some scientific changes also being adopted at some levels. Like we get to see genetically modified crops these days, only in some areas of India, not everywhere. But these genetically modified crops, as far as what I have read, they help beat the
climate change, and they stand the wind of this climate change. So that was about the impact. Okay, I I would agree like with to you. add a point to your discussion that you have, as you said, that the agriculture is most affected by the climate change. So, what in case of import and exports are also affected depending upon the amount of the production of agriculture. Example, the India can help many countries by providing these basic amenities like wheat, rice, in the countries like where the wars are going at present, like for Ukraine. And so these shortage of supply can really affect those people in other countries as well. Okay, climate change due to the increasing temperature, due to the increasing greenhouse gas emission, temperature of our Earth is increasing day by day, and it has its effect is unequal on the countries. Like it has different effect on developed, and underdeveloping nations. Like developed countries have emitted most of the greenhouse gases, and they are now talking about the to reduce the impact of the climate change. But take the example of our country India, which is developing and which is highly dependent upon the fossil fuel for power production. Even today 70% of power produces from coals and fuels oil from oils. So if we impose climate change restriction on developing country, it will hugely impact growth of our country and other developing nations. So it will have severe effect on our country's GDP. And also there are so many small countries which are near to seashore, and due to the increasing global warming, ice will melt, and the cities will be merged. So in this way we can say that it is unequal impact on the different countries. I completely I agree agree with with what Toran said. Uh, what Toran said. Talking about the impact of climate change in the automobile sector, we get to see a lot of EVs also these days, which are basically resistant to climate change. So these electric vehicles, these these are the product of um, the the things. uh, I don't agree with like Himanshu See, Manshu? कि जो पोल्यूशन हो रहा है उसके अगर हम लोग ईवी के ऊपर फोकस करें तो पोल्यूशन कम कर सकते हैं। यस, हम मान लेते हैं कि ईवी पोल्यूशन कम करता है, लेकिन ईवी को चार्जिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमारे देश में उसका 70% बनता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स से, और जिससे बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है। तो ईवी इज नॉट द ईवी को हम लोग नहीं मान सकते कि कार्बन एमिशन कम करने के लिए ईवी बेस्ट है। उसके जगह एक तो है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कार्बन एमिशन कम करने का, पेड़ लगाओ, गाछ लगाओ। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया है, कर्नाटका में एक जगह है जहाँ पे लोग गाछ की मतलब ट्री को प्लांट करने के बाद वहां का टेम्परेचर 2.5 डिग्री डिक्रीज हो गया है बाकी इंडिया के सारा स्टेट से। तो गाछ लगाने से अच्छा कोई चीज नहीं है जो कार्बन एमिशन को कम करके क्लाइमेट चेंज को रोक सकता है। पूरा दुनिया इसके ऊपर डिस्कस कर रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, इसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो पूरा जंगल साफ कर दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे कार्बन एमिशन को रोक सकते हैं। ये नहीं कि बस ईवी को मार्केट में लाए तो कार्बन एमिशन कम हो गया। जो बचा हुआ है पहले उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके बाद चीजों को न्यू चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। I completely agree with your point, bro. As you said, that we have to focus on sustainable development as well. As the recent innovation has been going at a very fast-paced rate. So there recently was a news that Toyota is building a type of engine which will be completely running on water, and this could completely eliminate the use of EVs in the world. As you said that the water needs to be also saved, so there was a startup in the India as well, which is producing the water, clean water from directly from the air itself through different chemical processes. Yes. Uh,
To decrease the carbon emissions, we have to plant more trees in the world. Yes, I would completely agree with all of my friends. As all we are aware about that climate change is a major concern about any country or any our populations. So climate change is basically causing also bad impact on our trading relations, because if any country is causing more and more pollutions by their products or their industries, then and they are not following the rules, then other developed country want to impose some rules or regulations and impose some strict rules, so that there should be decrease in trade trade barriers. There are many reasons arises of trade barriers, so there is a decrease in GDP also of a country. So it is not if anyone's not following the rules of climate change, then it can have bad impact on political relations, as well as it also causes many natural disasters such as floods, so that it can create political issue in any country. So we should, as many our friends have told about, plantation is the key opportunity to reduce the carbon emissions, so that we can prevent climate change. I Due to agree this, with all my friends. Due to increase in temperature, gradually it also affect on animals. They're dying, and they are dying due to increase in temperature. So they also effect on GDP indirectly. due to this climate change, countries have tried to find the alternative greenhouse energies for the for alternate energies like the solar energy, wind energy, and and hydroelectric energy. So our country is also it has committed to reduce the to produce this 30% power from the non-renewable energy. So in this way, our country is trying to reduce the increase its proportion in non-renewable side, and it will reduce the impact on pollution also. Taking I Toran's completely point agree with your ahead, point. Completely agree with Karan, but I want to give another direction to our discussion. क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहा है, उसके वजह से जो वाटर लेवल है सी में वो इंक्रीज हो रहा है बीते कुछ सालों में, एंड ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ साल में 2050 के अंदर इंडिया का कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक कलकत्ता, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट एज वेल एज गोवा, ये सारा सिटी पानी के अंदर चला जाएगा। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और ये सीधा एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा हमारे देश में। तो क्लाइमेट चेंज Okay, I agree with your point. As you mentioned about melting of glaciers, due to the melting of glaciers, it will definitely benefit the northern region country like Russia, because due to melting of ice, because most of the portion of the Russia is covered with the ice, and after melting, they will get the huge portion of land which is of the mineral importance. So it will definitely put at great remark at global level to the Russia, and it will definitely affect the coastal regions. So reduce this impact. Developed nation has given some fund for to developing countries to reduce this uneven impact. I completely agree to the last 2 points made by my two fellow members. But building upon both these points, we definitely feel the need to look at some alternative sources of energy which can beat the impact of climate change. So, according to me, nuclear energy can be the solution for the problem, the crisis faced by people all over the globe. So, basically, nuclear energy can be
utilized to meet our energy needs. The nuclear energy basically focuses on exploiting the vast thorium reserves that are present in the country, and I do believe that this can definitely take the load of some energy sources that we are currently consuming. I completely agree with your point, and taking your point further, I also like to add that instead of using nuclear energy, we can also have the solar power plants. But instead of converting them into plants, we can use the solar power on a rooftop. So if individually if the solar power will be used at the rooftop, that would subsequently bring down the prices low, as well as the maintenance would be much easier as compared to maintaining a power plant as well. So using the rooftop solar plant would be the best in case of using the nuclear energy, because sometimes the nuclear energy the rare metals is very costly. So using the solar plant at home would be the best choice for it. I am agree with my last two fellow group members. Green hydrogen may be also a permanent solution to this problem, because green hydrogen के प्रोडक्शन में ग्रीन हाइड्रोजन को क्यों ग्रीन बोला जाता है, उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है. तो ग्रीन हाइड्रोजन एज ए फ्यूल एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो कार्बन एमिशन को कम करके हमारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है. But there is a point that hydrogen in its pure form is kind of explosive. Therefore, we have to avoid its use to a much larger extent. That is was the reason that we are not employing the hydrogen directly into the our transportation system as well. Therefore, we have brought the EVs on the roads and not the hydrogen-based cars. Yes, I agree with the Jayesh. But the solar plants which we are buying should be very more cost. We have to provide some policies we have to provide for the solar power plant to decrease the cost. Yeah, government are taking the steps to provide the subsidies for the families. At every place, solar power plant is not possible to install. But during the summer days, there is a huge opportunity to catch the energy of the sun and use those energy in the like rainy season. So in this way, we can better utilize our resources. And also, Indian government is launched one road, one sun and one world initiative, and leading the world through the leading in solar area. So it is keeping our country as a leader nation in this area. I would like to clear the misconception that using the solar power plants on the sunny day or the rainy day affect the efficiency, but it is very low. Exactly, the solar panels work on the principle that there should be a certain intensity of light, and even if there is low intensity, like in the rainy day, as you said, but still the solar panels can generate the enough electricity, so that could be installed in every house, and it won't be having a negative effect, as you said. Yes, I am agree with all of my friends about renewable source of energy. Just like many of my friends have told about solar energy as well as hydro energy, and I would like to give that government should impose less and less tax on the company which want to invest in our country at renewable source of energies, so that they can produce or invest their money and set up plants, so that there should be a trade relationship between both countries, and also a good political relationship, as well as increase of GDP as well as flow of economy should good because of this. And so about this, I am agree with Moez that our government should provide some subsidies for something that already Indian government provided subsidy for the solar panel, as well as anyone जो buy करना चाहता है EV उनके लिए भी subsidies इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है इंडियन गवर्नमेंट. मेन प्रॉब्लम कि हमारे देश में अवेयरनेस का बहुत कमी है. लोगों को पता ही नहीं है क्या क्या स्कीम आ रहा है ईवी के पीछे या सोलर पैनल के पीछे. तो सबसे पहले अगर हम लोग लोगों को अवेयर कर सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है या कौन कौन सा गवर्नमेंट स्कीम हो सकता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है
जिससे हम लोग कार्बन एमिशन कम करके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Okay, wait now. The discussion is over. So now conclusion part. So one of you will conclude the topic. Who would like to conclude? Sir, Sir, I would I like would to like to. Okay, so Himanshu, go on. Okay, I would like to take this opportunity to conclude this discussion we just had. So we basically explored what is the climate change, why it does occur in the first place, and how we can go about measuring this geopolitical impact of climate change. We started with discussing the sea routes getting changed due to the abnormal weather conditions, followed by our discussion on the farming sector and the impact on agriculture, how this con- uh, heavily um, this sector contributes to GDP, and we also looked at the war aspect as to how we face shortage of supplies due to the climate change. We also looked at the greenhouse gases emissions, the melting of ice, and someone just told how cities are at the risk of getting submerged. We also discussed about the upcoming of EVs, and someone just told how the plantation of trees could actually reduce the temperature by 2.5 degrees centigrade, which is phenomenal. Followed by someone just opened up the discussion on the running of engines by water, which is another great option to explore. And we, in the end, we looked at some possible options like nuclear energy and solar rooftops, and we discussed both the advantages and disadvantages of both of them. And we finally concluded with, I guess, Mahesh for pointing on the improving of trade and international relationships. That was about GD. So the feedback is कि डिस्कशन काफी अच्छा था, सबने अपने पॉइंट्स रखे, बट मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि कृष्णा बीच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे. तो यू शुड अप्रिशिएट, उनको मोटिवेट करना था कि लेट कृष्णा पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन. इससे क्या होता है, आपका पॉजिटिव पॉइंट जाता है. तो बेस्ड ऑन योर पार्टिसिपेशन आई हैव गिवन यू द मार्क्स. So Anupam, you have secured 7.5 out of 10. Okay. Jayesh, you have also secured 7.5 out of 10. Himanshu, you have secured 7 out of 10. And Aditya, you have secured 6.5 out of 10. Okay, Toran, you have very good points. But again, you are just, आपको ऐसा लग रहा था कि आप पॉइंट्स थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे आई विल गिव यू द 7 out of 10, बट योर पॉइंट्स वाज वेरी गुड. ओके, सत्या, या वेयर इज सत्या? आई थिंक ही हैज लीव द मीटिंग. Okay, so Krishna, you have participated very less. So based on your performance, I have given you the 5 out of 10. And Mahesh, your points was very good. And I have also given you the 6.5 out of 10. Okay, तो आपको मैं अब इम्प्रूवमेंट्स बता देता हूँ सबका, कहाँ का इम्प्रूव करना है. तो महेश, आपको पार्टिसिपेशन थोड़ा और करना है, और जब भी आप बोलते हैं तो आपका थोड़ा हैंड जेस्चर भी होना चाहिए, हैंड और माइंड जेस्चर भी होना चाहिए. आप जस्ट केवल स्ट्रेट बोलते जाते हैं, जैसे कि आपका ये फेस है तो आप जस्ट ऐसे रखेंगे, उसमें थोड़ा यस नो ऐसे भी होना चाहिए. ठीक है, वो हैंड और जब माइंड जेस्चर होगा उसका सिंक्रोनाइज होना चाहिए. तो ये आपका थोड़ा मेजर ड्रॉबैक लगा मुझे. बाकी रेस्ट इज ओके. आपने पॉइंट्स काफी अच्छे अच्छे बोले थे. ट्रेडिंग रिलेशन बोला था, रूल्स फॉलोइंग रूल्स, जीडीपी डाउन, फ्लड्स, पॉलिटिकल इश्यूज, प्लांटेशंस, वेरी गुड पॉइंट्स. ठीक है, और ट्रेड डेफिसिट भी हो सकती है, मतलब जो भी इंडिया या फिर कोई भी कंट्री होगी. ठीक है, तो ये आपका इम्प्रूवमेंट होगा. नाउ कमिंग टू द कृष्णा. कृष्णा, आपने एंट्री काफी कम ली है, ना तो आपने इंट्रोड्यूस किया, ना ही आपने कंक्लूजन का मौका लिया. तो आपको पहले तो अपनी एंट्रीज बढ़ानी है. हो सकता है कि आपके पास वैलिड पॉइंट्स नहीं होंगे, लेकिन आप अगर सबका पॉइंट्स सुनेंगे तो आपके माइंड में भी एक दो पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जो कि आपने नहीं सुना हो. तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सबके पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, और आप कंक्लूड तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं. ठीक है, बाकी जो भी पॉइंट्स बोल रहे हैं आपके जो भी फेलो मेंबर्स हैं, उनको ही आप
थोड़ा बहुत घुमा फिरा के बोल सकते हैं वहां के, ताकि आपको कुछ मार्क्स प्रोवाइड हो। ठीक है, तो इसलिए नाउ कमिंग टू तोरन। तोरन, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। देखो, आपने ग्रीन हाउस गैसेस का बताया था, इंक्रीजिंग टेम्परेचर का बताया था, और अंडर डेवलपिंग ये बताया था। एक्चुअली मैंने पूरा लिखा नहीं। ठीक है, 70% पावर प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, और फ्यूल्स एंड ऑयल्स ये बताया था। सी शोर, जो भी सी का लेवल बढ़ रहा है वो भी बताया था आपने। ठीक है, तो पॉइंट्स आपके काफी अच्छे थे, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस और लाने की जरूरत है तुरंत। ठीक है, बाकी नाउ पॉइंट्स आर वेरी गुड। नाउ कमिंग टू अनुपम। अनुपम, आपने डेटा वगैरह जो दिया था वो काफी अच्छा पॉइंट्स थे। ठीक है, तो अगर डेटा आप इंक्लूड करेंगे रियल जीडी में तो आपको बेनिफिट होने वाला डेफिनेटली। ठीक है, बाकी आपके थोड़े और मार्क्स आने चाहिए थे, तो मैंने इसलिए आपके मार्क्स डिडक्ट किए हैं, क्योंकि आपने कृष्णा को नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने सबके 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए हैं, क्योंकि सबने कृष्णा को नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। जस्ट आप अपने में ही लगे हुए थे। ठीक है, सब लोगों की बात बता रहा हूँ, नॉट ओनली यू। एक्चुअली स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना कौन कौन है पूरा, उसको मेरे को स्क्रॉल करना पड़ रहा है अगर दिखने के लिए, जो अच्छा नहीं अच्छा, दिख रहा ओके है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम से मैं ये वाला फीचर ऑन कर दूंगा। ठीक है, तो चलो, है ना। तो आपके पॉइंट्स काफी अच्छे थे, मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट दिए आपने। डेटा भी काफी ये दिया। एक 2.5 डिग्री कर्नाटक में जो प्लांटेशन से आया है वो अच्छा दिया था। 15% जीडीपी एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारी, ये अच्छा पॉइंट दिया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस भी आपने किया था। तो ट्राई करना, अगर इंट्रोड्यूस आप कर रहे हैं तो कंक्लूड आप ना करें। ठीक है, ठीक है ना। कोई भी, अगर मैं सबसे बोल रहा हूँ, अगर कंक्लूड, अगर आपने सोच लिया कि मुझे कंक्लूड करना है तो इंट्रोड्यूस पर आप मत कीजिए, क्योंकि क्या होगा, अगर इंट्रोड्यूस भी आप कर रहे हैं, कंक्लूड भी आप कर रहे हैं, इट मींस यू वांट टू डोमिनेट द इन द ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द आदित्य। आदित्य, आपने पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स बोले थे, लेकिन काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे आपके। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप थोड़ा एंट्रीज और लीजिए और अपने पॉइंट्स बढ़ाइए। ठीक है, ठीक है। अगर आपको हिंदी बोलने में इजीनेस है तो आप हिंदी में ही अपना ग्रुप डिस्कशन फॉरवर्ड कीजिए। जैसे कि आपने बीच में इंग्लिश में भी बोला था, हिंदी में भी बोला था, तो दैट शुड नॉट बी देयर। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में ही प्रोसीड कीजिए। ठीक है, ठीक है। और बाकी आपको पॉइंट्स एड अप करने हैं। ठीक है। ठीक है, तो आपका मेन हो जाएगा पॉइंट्स एड अप करने हैं आदित्य को और महेश को। ओके, नाउ कमिंग टू हिमांशु। हिमांशु, आपने भी मतलब काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए थे, और आपका जो बोलने का तरीका है वो भी काफी डिसेंट था। ठीक है, ईवीज का पॉइंट आपने दिया था, क्रॉप प्रोडक्शन का पॉइंट दिया था, एडल्ट्रेशन ये भी पॉइंट्स दिया था। ठीक है, बाकी एक दो पॉइंट्स आप और ऐड कर सकते हैं इसमें, दूसरे से सुन के आप उसी को ही इलेबोरेट कर सकते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, और कंक्लूजन भी आपने दिया था, कंक्लूजन वाज वेरी वेरी गुड। उसमें आपने सारे स्टूडेंट, सारे जो भी आपके फेलो मेट्स थे, उनके पॉइंट्स ऐड किए हैं। ग्रीन हाउस गैसेज, मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ आइसेज, आइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, अपकमिंग ऑफ ईवीज, प्लांटेशन, 2.5 डिग्री जो पॉइंट्स बोला था अनुपम ने, और रनिंग ऑफ इंजन विद वाटर, सारे पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स एड अप हो गए थे, 8 to 10 पॉइंट्स। तो कंक्लूजन वाज वेरी गुड। तो आप बीच में बॉडी पार्ट जो है उसमें एक दो पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, Okay. बस वहां पे वर्क कीजिए। बाकी कमिंग टू जयेश। जयेश, आपने भी बहुत अच्छा एंट्री ली है। आई थिंक 3 to 4 टाइम्स आपने एंट्री लिया बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, डिस्कशन पार्ट में। और पॉइंट्स आपके ग्लोबल वार्मिंग था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, जो कि ट्रेड डेफिसिट इन्होंने भी बोला है। ठीक है, ये अगर आप इसी में ही थोड़े नंबर्स वगैरह भी ऐड कर देंगे, जैसे कि ओके कितना ट्रेड डेफिसिट हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास नंबर्स नहीं है देन इट इज ओके, मैं जस्ट प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप नंबर्स वगैरह, कोई भी पार्टिसिपेंट अगर ऐड करता है ना किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, तो इट विल बी वेरी बेनिफिट फॉर ओवरऑल डिस्कशन। ठीक है, Yes, तो sir. आपका मतलब आई कांटेक्ट भी अच्छा था। आप सभी लोगों का आई कांटेक्ट आज मुझे अच्छा लगा। बस एक नेगेटिव फीडबैक लगा कि आपने जस्ट कृष्णा को थोड़ा मौका नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने 0.5 मार्क्स सबके डिडक्ट किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टॉपिक की। टॉपिक क्या था अपना? जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो द इंट्रोडक्शन वॉज, जैसा कि मैं सोच रहा था वैसा ही इंट्रोडक्शन था, कल की तरह नहीं हुआ था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको बताना था कि क्लाइमेट चेंज के क्या कॉज हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, जस्ट ये बोल के आपको ओपन फॉर द
हाउस कर देना था डिस्कशन को, ठीक है, जो कि आपने किया अभी अनुपम, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में जस्ट आपको सारे सबने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं कि जैसे एग्रीकल्चर। देखिए पहले तो सबसे आपको बताना था कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो दैट्स इट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इससे आपकी एग्रीकल्चर पर इफेक्ट होता है, आपका सी लेवल इंक्रीज होता है और आपका एनवायरमेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स जो कि सबने बोले हैं। और एट लास्ट कंक्लूजन, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है। Yes. Yes. सो योर टॉपिक इज द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो ये मैंने किया था कि क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, इट्स इफेक्ट आर फार रीचिंग, इन्फ्लुएंसिंग नॉट ओनली द एनवायरमेंट बट आल्सो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट होता है कि अगर कोई भी कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो वो क्यों करना चाहेगा आपसे ट्रेड, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट मींस ओवरऑल इंपैक्ट आ रहा है कंट्रीज पर, ठीक है। एज नेशंस ग्रैपल विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी अराइजेस रीशेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पावर डायनामिक्स, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया था, मीन्स इंट्रोडक्शन गुड था आपका। नाउ डिस्कशन टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज, ठीक है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, देखिए ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स, ये सारे मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। और जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट, आप जो भी जियोपॉलिटिकल पावर पहले आपसे कांटेक्ट में थे वो पावर शिफ्ट हो गए किसी दूसरी कंट्रीज पर हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी आप डिस्कशन कर सकते थे। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मींस, ये जो पीडीएफ है मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप एक बार से पढ़ लेना। बाकी आज का डिस्कशन मुझे काफी अच्छा लगा था कंपैरिजन टू यस्टरडे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो ग्रुप डिस्कशन थर्ड थर्ड टॉपिक लेके आते हैं। तो एक मुझे फीडबैक चाहिए था, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम लिया था सबका इंट्रोडक्शन करवा रहा था, सबका इंट्रोडक्शन चाहिए या फिर किसी कोई एक पर्सन इंट्रोड्यूस करे? Sir, one person would be enough because it will look natural. ओके ठीक है, और कंक्लूजन भी वन पर्सन करना चाहिए, राइट? Yes, sir, it should be like that only. ठीक है, ओके, तो आपके एंड से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Sir, my doubt is that before we conclude our group discussion, we should take the agreement of our group members or not, or we should directly go to the देखो conclusion. जब आप पैनल पे जाएंगे तो पैनल, देखो क्या होता है, पैनल आपको टॉपिक देगा, 2 मिनट्स देगा सोचने के लिए, एंड देन आपको बोलेगा कि आप में से कोई एक इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है, तो उसको आप स्नैच कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन को आपको सबसे सबसे मतलब एग्रीमेंट लेके करना चाहिए। जैसे अगर जयेश करना चाह रहे कंक्लूजन, तो एवरीवन शुड एग्री दैट कि जयेश कंक्लूड कर सकता है, ठीक है, या फिर पैनल मेंबर ही बोल देंगे, पैनल मेंबर वहां पे अगर देखेंगे कि किसी ने नहीं बोला है, जैसे कि कृष्णा ने नहीं बोला था, तो कृष्णा को अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप कंक्लूड कीजिए। अगर इन्होंने कंक्लूड नहीं किया तब आप में से कोई एक कंक्लूड कर सकता है बेस्ड आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ अदर फेलो मेंबर्स। Yes, sir. सर सर एक क्वेश्चन है यस, सर, वहाँ पे मोबाइल अलाउ रहता है क्या? वो नो नो नो, टॉपिक दिया तो देख। पॉकेट में अलाउ है मोबाइल, लेकिन आपको वहाँ पे ओपन नहीं करने देंगे, सर वहाँ पेन पे तो अलाउ साइलेंट होगा? साइलेंट करके जाना है आपको मोबाइल। पेन तो अलाउ होगा सर? हाँ, पेन और पेपर को देंगे, और आफ्टर पेन और पेपर आपको वहीं पे पेपर को डिस्ट्रॉय करके जाना होगा, ये नहीं कि आप उसको रूम से बाहर ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और सर पूछिए। मेरा एक डाउट है, Yes. जैसे कोई इससे बोलेगा, अगर मेरा बात को कोई एग्री नहीं कर रहा है जैसे, लेकिन वो गलत डाटा दे रहा है, जैसे अभी हुआ है भी कि ग्रीन हाइड्रोजन वाला जिस बात पे हुआ कि हाइड्रोजन एक्सक्लूसिव है, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन में जो एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसमें मेरे को पता है चीजें, तो अब कोई एक बोल दिया, डिसएग्री कर दिया, फिर कोई और एक बोल दिया, मेरे को तो उस टाइम बोलना ही नहीं मिला, तो मैं क्या बाद में उसको बोल सकता हूँ? नहीं, बाद में नहीं बोल सकते आप, ठीक है। और आप में से मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जब भी हिमांशु ने शायद स्टार्ट किया था बॉडी पार्ट में, तो आप दूसरे को मौका दे रहे थे बोलने के लिए, है ना हिमांशु? आपने 1-2 बार हुआ था, है ना? ऐसे नहीं करना है वहां पे, हाँ अगर आपका एक बार मौका चला गया तो फिर छिन जाएगा वो मौका।
फिर आपको मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है मौका। फिर कंटिन्यू करते रहना है मेरे को आपको मतलब। जस्ट बोलते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइट फाइट लग रहा है, लेकिन हाँ बोलते जाना कंटिन्यू, ठीक है। बस वो एक था। और पूछिए। सर वो बोलेंगे क्या, कंक्लूड अब कर सकते हैं आप लोग? हाँ वो बोलेंगे, वो बोलते हैं कि ओके सो नाउ द डिस्कशन पार्ट इज ओवर, नाउ इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन, सो वन ऑफ यू विल कंक्लूड, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब वन ऑफ यस। यू विल कंक्लूड में जैसे मान लो कि आप ही कंक्लूड करना चाहते हैं महेश, तो आपको यस। एग्रीमेंट लेना है सबका कि शुड आई कंक्लूड द डिस्कशन, यस। बस ऐसे करके बोलना है शुड आई कंक्लूड द डिस्कशन, मतलब सबसे आई कांटेक्ट करके ऐसे ऐसे, ठीक है। शुड आई कंक्लूड द डिस्कशन, ओके। अगर आप सब फेलोमेट्स रेडी होंगे, वैसे अगर आप इतना ही बोल देंगे कि शुड आई कंक्लूड द डिस्कशन, तो सारे फेलोमेट्स रेडी ही हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप यस। कंक्लूजन कर रहे हैं तो सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने, जैसा कि आज शायद हिमांशु ने किया था, इसलिए वो अच्छा कंक्लूजन दे पाए, हाँ। ठीक है ना। और एनी अदर डाउट्स? नहीं है? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं, ठीक है। बाय। Okay. बाय।